घर के जैसे एक और ये रहने का जो है ना 50 GB देता है। ये 50 GB सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना बड़ी। पानी में के वजह से कर लो, लेकिन स्टार्टिंग ऑफिस करके 8-10 लाख देगा नहीं को भी प्रॉब्लम है। वही 8-9 घंटे वो करेगा। तो पैसे तो मेरे को नहीं लगता 7-8 हज़ार देगा। इसलिए लग रहा है वो इंटेंसिव क्लास है क्या? पैसे तो लगता है। ऐसा है तो मैं जाऊंगा तो मैं एडिट कैसे नहीं जाऊंगा? भले ही टीचिंग एक्सपीरियंस भले ही कुछ प्रोग्रामिंग वाला नहीं, डेवलपमेंट वाला मानते हैं। एक्सपीरियंस तो फर्जीवाड़े में करना है, लेकिन वही है कि डायरेक्ट जाके काम देंगे। मेरे फ्रेंड था जो उनसे कॉलेज में था, मेरे पति ने खाना बैठे में लगा था। मैंने इसको ज्वाइन के लिए उससे वहाँ लगा 2500 रुपये देते थे उसको। Good morning, students. Today's topic MySQL. So, structure query language, unit number 2 from IP. So, first is what is SQL? SQL is a structure query language. The full form of SQL is structure query language. So, SQL is a standard language developed and used for accessing and modifying relational database. That means a language, a command is a set of commands used for accessing data from a database. To accessing data, that means we can access the data from database, then modify data, update data from in a database. We can update data in a database. Then a set of commands to extract out useful data from a database. So we can also create a new table, new database. We can extract out data from a database. These are the feature of SQL. Capital SQL है यहाँ पे, S, Q और L all are capital letters.
So structure query language एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL या व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ SQL? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. The SQL originally developed at IBM Research Lab. So generally it is developed by IBM in 1970s में develop हो गया था approximate. So SQL is being used by many database management system. अब SQL is just a language, but MySQL is just not a language. So SQL is a language. So SQL is a query-based language. It is used to create a database, used to create a table in a database, it is used to access data from a database, it is used to update data in a database, it is used to extract certain data from a database. So SQL is a language, set of commands. इसमें बहुत सारे commands हैं used to access data from a database. database आप store कर सकते हैं data को वहाँ पे, and then you can access your data at any time whatever you require. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेरी करते हैं, देन वो आपको रिजल्ट में शो करता है. ये आपको ध्यान रखना है वहां पे. सो तो फर्स्ट MySQL जो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देन PostGRE SQL, देन Oracle SQL वहां पे यूज करता है. Oracle जस्ट ये सब क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं. दीज आर नॉट अ लैंग्वेजेस, दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. यहाँ पे ये जो आपके एक्चुअल में SQL को यूज करके वहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, वहां पे क्वेरीज फॉर्म करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डेटाबेस को. दीज आर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से. यहाँ दीज आर डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS जो बोलते हैं हम यहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो है MySQL में. तो फर्स्ट इज MySQL इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये MySQL इज नॉट अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज नहीं है. PostGRE SQL is not a language, it is a database management system to manage a data in a system. Sorry. Then Oracle is it is also a database management system, it is not a language. SQLite, Microsoft SQL Server, we are using Access, MS Access. MS Access is also using MySQL for accessing certain records from a table, certain columns from a table. तो हम वहाँ पे MySQL का SQL लैंग्वेज का यूज करते हैं, MySQL का नहीं करते हैं. तो SQL और MySQL में डिफरेंस ये है, SQL is a query language but MySQL is a database management system. An advantage of SQL is MySQL का advantage नहीं है, these are advantage of SQL. Interactive language है, वहाँ पे we can communicate with data. That means we have a certain commands to create a table, create a database, insert a command, insert a data into tables, update data, and then we get answer from. We going to create a query create करते हैं, and then we get answer, results मिलते हैं वहाँ पे within a second from a database. तो multiple data views है, जो भी requirement है उसके according हम database के जो data है उसको हम view कर सकते हैं. If a database contain a table contain 10 columns, अगर आपको requirement only 3 columns की है, तो we extract out data of 3 columns only. हम बाकी के डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे आपकी मार्कशीट के लिए जनरली बात करते हैं, तो मार्कशीट के लिए जनरली कुछ सारे डेटा नहीं लेता है वहाँ पे, तो कुछ डेटा एक्सेस आउट करता है वहाँ पे, तो सारा डेटा नहीं लेता, तो उन पर्टिकुलर डेटा को ही डिफरेंट व्यूज बोला जाता है. वहाँ पे डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है, बट मुझे अगर रिक्वायरमेंट ओनली आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ की है, तो ओनली दीज कॉलम आर एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम डेटाबेस और टेबल. पोर्टेबिलिटी है वहाँ पे, क्योंकि SQL कैन बी यूज्ड इन एनी PC, एनी सर्वर, लैपटॉप्स, एनी मोबाइल फोन. तो बहुत सारे इवन डिफरेंट टाइप ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपके SQL को यूज करते हैं. तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी मींस तो पोर्टेबल है. यहाँ पे हम चाहे आइदर वी यूज ऑन विंडोज, वी यूज ऑन एंड्रॉइड सिस्टम, वी कैन यूज ऑन मैक सिस्टम, लिनक्स सिस्टम. वहाँ पे तो सिस्टम की कोई, वहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, वहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है. उसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप सिस्टम की वो भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है. उसके अलावा मदरबोर्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, सिस्टम जो है इंटेल प्रोसेसर है, वहाँ पे AMD प्रोसेसर है, एंड्रॉइड प्रोसेसर है, वो भी कोई भी वहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, आप किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं.
उसके अलावा एसक्यूएल जो लैंग्वेज है बहुत सारे डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है वहाँ पे, वो सब एसक्यूएल को यूज करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस डेटा को एक्सेस आउट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए भी एसक्यूएल यूज करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। नो कोडिंग की रिक्वायरमेंट, कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, आपको कमांड्स याद करने हैं वहाँ पे। तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज द डेटाबेस सिस्टम, वी नीड टू रिमेंबर द कमांड्स। वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे एसक्यूएल में, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस, सारे जो डीबीएमएस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारे सेम कमांड्स यूज करते हैं। सो यहाँ पे कमांड्स आपके चेंज नहीं होते हैं डे बाय डे, कमांड्स आपके सेम रहेंगे। तो MySQL अब बात कर रहा है ओनली MySQL नॉट SQL, My अलग है SQL अलग। तो MySQL is currently the most popular open source database software. Open source means open source, that means source code is available for addition or updation. आपको अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, उसको अपने अकॉर्डिंग आप, इट इज अ मल्टी यूजर मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL स्पेशली पॉपुलर ऑन वेब, जनरली आपके वेब प्लेटफॉर्म जो भी है वहाँ पे वो यूज करते हैं MySQL टू स्टोर डेटा। जनरली कुछ वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स पे डेटा स्टोर करने के लिए वो MySQL को यूज करते हैं। तो वन ऑफ पार्ट ऑफ लैम्प और वेब प्लेटफॉर्म है, दो है यहाँ पे। लैम्प मीन्स लिनक्स, अपाचे, MySQL और आपके एक और लैंग्वेज जो है PHP। जो वेब बेस्ड विंडोज, अपाचे, MySQL और P फॉर PHP। So Linux, Apache, MySQL and PHP for LAMP and WIMP for Windows, Apache, MySQL और PHP। तो वेब, WAMP और LAMP। तो यहाँ पे Linux मींस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Apache इज अ वेब सर्वर जहाँ पे वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है, MySQL इज अ डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होगा, और PHP इज अ वेब पेज क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज है वो PHP है वहाँ पे। देन WAMP सेम जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अपाचे इज अ वेब सर्वर जहाँ पे वेबसाइट के सारे पेजेस स्टोर होंगे। MySQL जो है डेटाबेस के लिए है, और PHP जो है आपकी वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज आता है। तो MySQL AB was founded by Michael Wittness, Monty, David Exmark and Ellen Ladison in Sweden in year 1995। तो MySQL जो है आपके माइकल विटनेस ने यहाँ पे, मॉन्टी जो है उसका शॉर्ट नेम है वहाँ पे, तो वो उसे डेवलप किया वहाँ पे। MySQL डॉल्फिन का साइन है वहाँ पे। तो फीचर ऑफ MySQL is first open source and free of cost, no license is required, open source that is source code is available for updation, modification and available at free of cost, no cost is involved here। लाइसेंस के लिए कोई भी कॉस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोर्टेबिलिटी है, स्मॉल साइज का सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल इजीली विंडोज, मैक, लिनक्स के लिए वहाँ पे, यू कैन रन इट ऑन एनी ऑफ टाइप ऑफ हार्डवेयर। सिक्योरिटी है, यहाँ पे डेटाबेस प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड, पासवर्ड के बिना आप MySQL के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम एंटर पासवर्ड, पासवर्ड जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपके जो डेटाबेस को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। नो वन कैन एक्सेस डेटाबेस विदाउट योर परमिशन। कनेक्टिविटी अवेलेबल है यहाँ पे, वेरियस APIs आर डेवलप्ड टू कनेक्ट इट विद मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो MySQL के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे APIs है, जैसे हम पाइथन को MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही विंडोज आपके जावा वगैरह है, PHP है, वहाँ पे उनके लिए भी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरेक्टिव जो है आपके वो APIs अवेलेबल है जिनके थ्रू आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे, क्योंकि डेटाबेस जो है बैकएंड पे होता है, जनरली पीछे होता है सारा कुछ, हम अगर वेबसाइट में कोई फॉर्म भी फिल करते हैं तो हमें डेटाबेस शो नहीं होता वहाँ पे, ओनली फॉर्म शो होता है। बट जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सारा डेटा जो आपने फॉर्म में फिल किया है वो डेटा आपकी जाके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। तो जनरली इसको बोलते हैं API, बीच में API है जो आपने वेब पेज में डेटा जो एंटर किया उसको डेटाबेस में स्टोर करने का वर्क करता है। तो कनेक्टिविटी इशू है वहाँ पे, कनेक्टिविटी है वहाँ पे। पाइथन में अगर डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ कि एंटर योर नेम, और पाइथन में मैंने नेम लिखा है, वो मुझे चाहिए वहाँ पे कि मुझे MySQL डेटाबेस में सेव हो जाए, वहाँ पे MySQL में सेव हो, तो वहाँ पे मुझे हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिएगा वहाँ पे जो इन दोनों को कनेक्टिविटी करे। तो हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे, कनेक्टिविटी ऑफ पाइथन विद MySQL।
देन क्वेरी लैंग्वेज जो MySQL सपोर्ट करता है, क्वेरी लैंग्वेज SQL है वहाँ पे, हैंडलिंग डेटाबेस दैट मींस फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, क्रिएटिंग अ, तो कुछ कमांड्स जनरली मैं रिपीट जनरली फास्ट करूंगा जो हमने 11th में पढ़े कमांड्स। तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन मींस टू क्रिएट अ टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल क्रिएट किया, टेबल का स्ट्रक्चर बना, ना कि डेटाबेस में आपकी क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल करने, डेटाबेस करने से आप उसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टेबल, तो क्रिएट अ डेटाबेस, फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नेम सेमीकोलन, उसके बाद में आप यूज करेंगे उस डेटाबेस को, यूज जो भी डेटाबेस का नेम दिया है, यूज स्टूडेंट तो स्टूडेंट, देन क्रिएट अ टेबल इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, to create table with number of columns. So first we have to create a table, that means create a structure of a table कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर को डिनोट कर रहा है तो उसमें सारे इंटीजर वैल्यू, सेकंड कॉलम डिनोट नेम तो सारे स्ट्रिंग वैल्यू है वहां पे, कैरेक्टर वैल्यू वेयर कैर, थर्ड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट, डेट टाइप की वैल्यू लेगा, एड्रेस वापस से आपके वेयर कैर और कैर। Second, alter command is used to change the structure of table, that is we can add a column in a table, new column in a table, we can remove a column from a table, we can change the data type of a particular column in a table, तो डेटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करें तो अल्टर कमांड। तो ये आपके वैल्यूज पे वर्क नहीं कर रहा, तो डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कमांड्स होते हैं वो टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप द टेबल, होल टेबल विद डेटा एंड स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अब आपने टेबल क्रिएट की है, उसके बाद हम डेटा आपको इंसर्ट करना है, तो वी यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट मींस मैनिपुलेट द डेटा इन अ डेटाबेस। तो आपने टेबल क्रिएट कर दी, स्ट्रक्चर प्रॉपर बना लिया है, तो फर्स्ट कमांड इज टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, तो फर्स्ट कमांड DML कमांड है इंसर्ट। देन इंसर्ट करने के बाद में अगर आपको चेक करना है कि कौन सा डेटा आपका इंसर्ट हो गया है, सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं हम। देन अगर आपका डेटा सही नहीं है तो वी यूज डिलीट रो फ्रॉम अ टेबल, डिलीट कमांड यूज करते हैं। फिर अगर आपको डेटा अपडेट करना है तो अपडेट कमांड यूज करते हैं। फिर आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनिपुलेट परमिशन और एक्सेस राइट्स टू द टेबल, तो टेबल को कुछ राइट्स देते हैं वहां पे कि इस टेबल को कौन कौन यूजर यूज कर पाएंगे, तो उसके लिए ग्रांट और रिवोक, तो कुछ परमिशन देते हैं वहां पे कि ये रिकॉर्ड जो है कोई और डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई और मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, ग्रांट और फिर रिवोक। ग्रांट मींस परमिशन ग्रांट करना, वहां पे देना उसको परमिशन और वापस परमिशन वापस देना, तो सारा कुछ है यहाँ पे। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ट्रांजेक्शंस बनते हैं जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोला है, तो यूज टू कंट्रोल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन दिस मींस सेट ऑफ कमांड्स एट ए टाइम, अगर आप सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन कमिट करना है, रोल बैक करना है और सेव पॉइंट करना है। तो अगर हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं, देन मेन्यू सेलेक्ट करते हैं कौन सी सर्विसेज, पिन नंबर डालते हैं, देन अगर आपको जो भी सर्विसेज है विड्रॉ द मनी, तो विड्रॉ द मनी, तो आप विड्रॉ मनी को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे पूछता है कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, और वहां पे भी ऑप्शन होता है कैंसिल का, दैट मींस वी कैन रोल बैक। तो कमिट मींस जैसे ही आप ओके कर देंगे कि यस, कैंसिल की जगह ओके कर देंगे सबमिट, तो वहां पे कमिट हो जाएगा कि आपके अकाउंट से 10,000 विड्रॉ होंगे, और वो बैंक को मैसेज कर देगा 10,000 विड्रॉ कर रहा है वहां पे, और आपके एटीएम ऑटोमेटिक 10,000 काउंट करेगा मनी फ्रॉम द एटीएम। सेव पॉइंट्स होते हैं वहां पे, जनरली सेव पॉइंट बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़े ट्रांजेक्शन ऑनलाइन अगर आप कुछ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पे सेव पॉइंट बनाता है, इतना डेटा सेव हो जाएगा। फिर जैसे 5 मिनट्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म सेव हुआ, सेकंड फॉर्म सेव हुआ, थर्ड फॉर्म सेव हुआ, फोर्थ फॉर्म सेव हुआ, तो इनकेस प्रॉब्लम आती है तो हमारे सर्टेन फर्स्ट फॉर्म फिल कर दिया प्रॉपर्ली, आपने सेव कर लिया, तो वहां पे वो सेव पॉइंट बनाता है, तो सेव पॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन MySQL, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था लास्ट ईयर 11th में, इंटीजर, इंट, तो वहां पे लिखते हैं इंट अप टू 11 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल, बट हमने देखा था 11 डिजिट का नंबर नहीं दे देता है, वो 9 डिजिट तक नंबर ही सपोर्ट करता है। स्मॉल इंट अप टू 5 डिजिट नंबर, अगर आपको फ्लोट, डेसिमल है, न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल वैल्यू देनी है तो डेसिमल लिखेंगे, और m, m इज लेंथ ऑफ डिजिट टोटल इंक्लूडिंग डॉट, तो m, d मींस अगर आपको टोटल 10 डिजिट 10 डिजिट का डॉट को काउंट करके 10 लिखा है आपने, तो वो 10 जैसे यहाँ पे 10,2, तो ये डॉट को भी काउंट करता है 10 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स इंक्लूडिंग डॉट। तो m की लेंथ जो होगी यहाँ पे जब आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हो तब
डॉट को भी इंक्लूड करता है, तो आपको उस तरह से साइज डिफाइन करनी पड़ेगी। और डी के बाद में जो वैल्यू आ रही है 2, दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज आप स्टोर करोगे। डेसिमल बाद में 2 डिजिट्स स्टोर कर रहे हैं, तो 2 10,2 मींस 10 इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेंथ प्लस डॉट। सो फिर डेट एंड टाइम, टू स्टोर अ डेट, तो डेट का फॉर्मेट आपको पता ही है कि पहले ईयर इन द 4 बाई फॉर्मेट, दैट मींस 1990 2021, फिर mm 01 02 03 12 dd फॉर 01 02 अप टू 30 और 31। फिर टाइम फॉर्मेट जो है पहले r 01 02 mm ss फॉर्मेट। फिर स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप में आपके दो कैर एंड varchar। कैर की साइज फिक्स्ड है, वहां पे फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है, दैट मींस अगर आपने 20 क्रिएट किया तो 20 नंबर ऑफ साइज जो होगी 20 कैरेक्टर की होगी वहां पे, और अप टू 255 कैरेक्टर्स ही लेगा वहां पे। तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है, साइज आप डिफाइन नहीं करते। और varchar में क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होती है। आपने अगर 20 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बोला तो वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर करेगा, बट अगर आपने जो डेटा इनपुट किया एट द टाइम ऑफ एंट्री, अगर 3 किया तो 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज के लिए मेमोरी यूज करेगा। तो बाकी के 17 जो कैरेक्टर की मेमोरी है वो कहीं और यूज करता है। तो varchar कैर और उनकी जो वैल्यूज है आप डबल कोट्स सिंगल कोट्स में ही एनक्लोज करेंगे। varchar यूज्ड इन MySQL एंड varchar 2 इज यूज्ड इन Oracle। अगर आप Oracle यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ MySQL तो वहां पे varchar की जगह पे varchar 2 है वहां पे। तो डेटाबेस शो करने के लिए शो डेटाबेसेस, जितने भी डेटाबेस अवेलेबल है, लिस्टिंग ऑफ डेटाबेस अवेलेबल इन MySQL। शो डेटाबेसेस, क्रिएट अ डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस जो भी डेटाबेस का नेम है वो आपको देना होगा। डेटाबेस को ड्रॉप करना, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। ड्रॉप टेबल, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। अगर आपको डेटाबेस को यूज करना तो यूज उस डेटाबेस का नेम लिखना है। फिर अगर आपको डेटाबेस पर्टिकुलर डेटाबेस में टू लिस्ट द टेबल ऑफ टेबल्स इन ओपन डेटाबेस, 4 टेबल्स, डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हैं उसको लिस्ट करेगा वहां पे। फिर क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, फिर कॉलम वाइज आपके ब्रैकेट के अंदर नेम, तो कॉलम का नेम, फिर कॉलम में टाइप ऑफ डेटा कौन सा स्टोर करके साइज वहां पे। अगर कोई कंस्ट्रेंट देना है प्राइमरी की, यूनिक, चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो, देन फर्स्ट नेम varchar 15 इस तरह से चलता रहेगा वहां पे। फिर अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर वापस व्यू करना है, यूज टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट। फिर डेटा आपको इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। फिर वैल्यूज, ऐड वैल्यू डाल सकते हो अगर सारी वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आप इंसर्ट करें तो फिर फर्स्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन उन कॉलम्स के नेम, फिर वैल्यूज, और फिर वैल्यूज आएगी आपकी। तो अगर अब इफ यू वांट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ टेबल तो यूज सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद में उन कॉलम के नेम फ्रॉम कौन सी टेबल से आपको करना है, फिर वेयर कंडीशन दैट में सर्टिफाई। तो सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको कमांड्स वापस रिवाइज करने हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी आपके नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वहां पे नल वैल्यू के लिए इज है, नल को इक्वल टू से नहीं करेंगे, और नल NU कैपिटल में नोट करेंगे आप, और उसको कोई डबल कोट्स में काउंट नहीं करने वाला है। select star from student, that is select all record from star, represent करता है all records from a table student। where clause जो है कंडीशन के लिए है कि where class equal to 4, that means class कॉलम के अंदर 4 जहां जहां एग्जिस्ट करता है उनके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। select पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखते हैं तो select कॉलम नेम, जो भी कॉलम है सेपरेटेड बाय कॉमा, तो फर्स्ट नेम कॉमा क्लास, आपको टेबल स्टूडेंट से ओनली नेम और फर्स्ट नेम और क्लास चाहिए, देन ये select star from student where city is null, जहां पे सिटी का नेम नहीं लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले करना, तो वो सब। बिटवीन क्लॉज आपको पता ही है, रेंज के लिए स्पेसिफिक रेंज, तो ये इंक्लूड करता है 4 and 6 आल्सो। तो ये रेंज देता है तो यहाँ पे 4 और 6 को भी इंक्लूड करेगा। तो क्लास जहाँ पे क्लास कॉलम के अंदर 4 and 6 जहां जहां पे होगा 4 से 6, 4, 5 और 6 वैल्यू जो भी है उसके लिए यूज करेगा। और इन जो है पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए उस कॉलम में सर्च करेगा, जैसे यहाँ पे है select star from student where class in 4, 5, 6, that means कॉलम में सर्च करेगा 4 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्लास कॉलम के अंदर, फिर 5 कहाँ पे है, 6 कहाँ पे, और आप लिखेंगे नॉट इन 4, 5, 6, that means जहाँ पे 4 और 5, 6 कॉलम में नहीं है उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। तो इन और नॉट इन दोनों आते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग हम कल डिस्कस करेंगे।
सो कल हम प्रैक्टिकल पार्ट करने वाले हैं कि 11th में जो भी आपने वॉट एवर वी लर्न इन 11th, 11th के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करेंगे एंड देन हम 12th का जो पार्ट है वहां पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कल हम प्रैक्टिकल करेंगे एसक्यूएल का